Hi everyone and welcome back to Media Pathshala in another session of Media Pathshala where we'll be talking about the subject of business communication. I've already made one video on it on the basis of introduction कि business communication क्या होता है, process क्या है communication का, communication ज़रूरी क्यों है business में. Okay, so this is the introduction that is being made. I'll share the link of the first video in the description. You can always go and check it on my YouTube channel. There's a playlist of business communication that is made. So students, as we all know, this subject is common to FY BCom, BMS, BAF and BBI students. It's a common subject for semester 1. In today's lecture, we will be studying the basic need of communication. Then we'll be talking about the feedback part, the importance of feedback, how communication is done in the global world, and what is the different impact of technology. Technology का क्या impact रहा है communication पे. We will understand the importance of business communication, the power of communication, and many more topics, right? So I think today's video might be a bit longer because all the topics are interconnected to each other, and hence I don't want to break the small topics because the continuity might get lost, right? So let us begin quickly. सबसे पहले तो हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है. एज इन बिजनेस में कम्युनिकेशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाना चाहिए, या कम्युनिकेशन की बिजनेस में नीड क्या है, राइट? When we talk about need of communication, it is important to understand that it helps in interaction. इंटरैक्शन किन के बीच में? बिजनेस डेलीगेट्स के बीच में. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में इंटरैक्शन जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है ताकि काम आसान हो जाए, राइट? सो कम्युनिकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सोशल इंटरैक्शन. It allows us to build relations, share experiences and create a sense of community. एक community build करने के लिए help करता है, हमारे relations को बेहतर करता है and experiences share करने में help करता है. From casual conversations to formal meetings, communication plays a vital role in connecting us with others and shaping our lives, social lives. एक casual conversation भी communication होता है और एक formal meeting जो business में हो रही है ये भी कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. Okay, next is information sharing. Communication always helps in sharing of different ideas, different expressions and different information. So communication is essential for sharing information, ideas and knowledge. It enables us to stay informed, make informed decisions and contribute to the collective understanding of the world. हम लोग आइडियाज और इंफॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ informed decisions भी ले सकते हैं, because if there is communication we might exchange a few words, exchange different knowledge, and on basis of that knowledge it can help us to make decisions, right? Whether it is learning about a current event, sharing news with friends and family, or collaborating on projects at work, communication is the foundation of information sharing. Information share करने के लिए communication, बातचीत करना जरूरी है. Alright? Then problem solving. बिजनेसेस में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्राइसिस आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? विद हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Effective communication is crucial for resolving conflicts and finding solutions to the problems. Problems के solution को ढूंढने के लिए, conflicts को resolve करने के लिए effective communication होना जरूरी है. It enables us to share information, express concerns and work together to find mutually agreeable outcomes. Mutually मतलब जो दो लोग communicate कर रहे हैं उनको दोनों को वो decision agreeable होना चाहिए and तभी वो communication जो है वो effective होगा. From personal disputes to complex business negotiations, communication is the key to finding common grounds and achieving desired outcomes. अगर वो personal disputes भी क्यों ना हो, business negotiations क्यों ना हो, communication जरूरी है किस चीज के लिए? To find a common ground and achieve desired outcomes. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड एम्पैथी. फीडबैक कम्युनिकेशन में तभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में देयर इज अ डिफरेंस. ओके, सो फीडबैक, व्हेन देयर इज अ फीडबैक कमिंग फ्रॉम द रिसीवर,
only then can we say that the communication is effective. We'll study with this in depth in the next slide also, but for now let us understand कि importance क्या है feedback का, क्योंकि मैसेज जब भेज रहे हैं तो सेंडर को ये भी पता होना चाहिए कि रिसीवर उसको सुन रहा है. रिसीवर ने अगर फीडबैक नहीं दिया तो सेंडर विल गेट कंफ्यूज्ड, विल गेट have any misunderstanding whether the receiver has received the message or no. So that is why feedback and empathy is important. इसमें पॉइंट्स क्या है, तो एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग इज अ की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. पहले आप जब सुनोगे तब आप रिप्लाई कर पाओगे. कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते नहीं है तो हमें पता नहीं होता रिप्लाई क्या करना है, राइट? तो कई बार क्लास में भी यही होता है, टीचर पढ़ा रही है, बच्चे का ध्यान नहीं है, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर ने क्वेश्चन पूछा बट बच्चे को पता नहीं है क्योंकि बच्चे ने एक्टिव लिसनिंग नहीं की, तो फीडबैक और रिस्पॉन्स कहाँ से देगा, राइट? दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट वी ऑल आर we all know about it. So active listening zaruri hai to give feedback, to give a feedback from the receiver's end. To get the feedback from receiver's end, the receiver needs to actively listen to the message first, right? It involves paying full attention to the speaker, understanding the message and responding appropriately. Then there is feedback. Feedback is a vital part of communication process. It allows the sender to know that the message was received and understood. अगर feedback proper रहा, I mean communication proper रहा, तभी feedback आएगा, और जब भी feedback आएगा तभी sender को पता चलेगा कि वो message properly receive हुआ है और समझ में आया है. It provides an opportunity for clarification and adjustment. Then there is empathy. Empathy is the ability to understand and share the feelings of another person. It is essential for building strong relations and resolving conflict. आपको दूसरों के फीलिंग्स कब समझ में आएंगे, दूसरों की एबिलिटीज कब समझ में आएंगी, जब आप उनको अच्छे से सुनोगे तभी आप एम्पैथी जता सकते हो, राइट? सो फॉर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए सामने वाले को समझना जरूरी है, और सामने वाले को हम कब समझ पाएंगे, जब एक्टिवली लिसन करेंगे उनकी बातों को. ऑलराइट, देन देयर इज effective communication. When combined active listening, feedback and empathy creates a foundation for effective communication that fosters understanding, connection and meaningful interactions. कंबाइन करने के बाद ये तीनों चीजें अच्छे से अगर कंबाइन होती है तभी जाके कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होता है, ठीक है? जिससे कि क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कनेक्शन बढ़ेगा और इंटरैक्शंस मीनिंगफुल होंगे. So it is important that these three things should be there so that the communication is effective. Okay, I hope you've understood this slide. Then there is communication in the global world. Because of a lot of technology and connections between the global world, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ने की वजह से the world has come closer to each other, right? So global world में communication क्या है या क्यों important हो गया है, उसके क्या अलग अलग factors हैं. So first is globalization. We all know what globalization is. It is connection to the world. Okay, the entire world is one market. See, you can see this picture. The entire world is connected to each other. ठीक है, via technology. जैसे कि इंटरनेट है, ब्रॉडकास्ट मीडिया है, ठीक है. तो इससे ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो आपस में कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो ग्लोबलाइजेशन आया, has led to increased interconnectedness and interdependency between countries and culture. Effective communication is essential for navigating this interconnected world, fostering collaborations and understanding different perspectives. If you want to understand the concept of the global world, it is important that you have interconnectedness, that you have, increased proper effective communication between the countries and cultures. नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस में कम्युनिकेशन हेल्प करता है. ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरे कंपनीज इंडिया में आके अपनी कंपनी स्टार्ट करे, अपना ब्रांड स्टार्ट करे, दे आर एंटरिंग द मार्केट, दे हैव एंटर्ड द मार्केट्स रादर, राइट? सो हमारी जो बिजनेसेस हैं, हमारे जो ब्रांड्स हैं, वो बाहर के देशों में जाके बिजनेस कर रहे हैं, दे हैव एंटर्ड द इंटरनेशनल मार्केट. तो इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस हो गया है, जरूरी है. तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू कन्विंस योर कस्टमर्स हु आर आउटसाइड योर कंट्री? आप अपने पेरेंट कंट्री में जब होते हो तो यू हैव अ कनेक्शन विद योर कंट्री, विद योर पीपल, विद द लोकल थिंग्स. बट व्हेन यू गो आउटसाइड एंड स्टार्ट अ बिजनेस, यू नीड टू you are entering a different market. So that is why वहां पर international business के लिए communication जरूरी है. To connect with those people, you have to communicate, right? So communication is a vital aspect of international business.
enables companies to negotiate deals, build relations with partners, and navigate the complexities of the global trade. Then there is cross culture communication. Cross culture communication में क्या आता है? It across communication across cultures requires sensitivity to different customs, languages, communication. Every culture is different. Culture is a way of living. Every culture is different. When two countries interact with each other, they also have to interact with their cultures, right? So उनके customs, उनके languages, communication की उनकी तरीके, styles, ये सब समझना जरूरी है. It's essential to be mindful of cultural differences and adjust our communication accordingly. उनके differences, उनके culture, उनका mind समझने के बाद हमें हमारा communication जो है वो adjust करना पड़ता है because हमें उधर business करना है, right? Education and collaboration. Communication is essential for fostering collaboration and knowledge sharing across borders. Knowledge कैसे share होगी? For education कैसे share होगा? Collaborations कैसे होंगे? जब communication अच्छे से होगा तभी. Right? It enables students, researchers, and professionals to connect and work together to address global challenges. Next slide, impact of technology. Technology का impact क्या हुआ है communication पे? The communication has become more fast and more efficient. आप देखिए, आप दुनिया में किसी को भी कभी भी फोन कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं. इफ यू हैव अ रिलेटिव स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, यू कैन इमीडिएटली वीडियो कॉल और ड्रॉप अ मैसेज. पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है? तो पहले लेटर्स जाते थे, इट वाज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट? सो फास्टर एंड मोर एफिशिएंट हो गया है कम्युनिकेशन. क्यों आ गया है ऐसा? टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट? टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, enabling us to connect with people around the world instantly and sharing information. इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, आप आसानी से कुछ भी चीज एक्सेस कर सकते हो. यहाँ पे बैठ के आप दुनिया के कोई भी कोने में शॉपिंग कर सकते हो, कोई भी कोने का न्यूज पढ़ सकते हो, ठीक है? एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है. टेक्नोलॉजी हैज मेड कम्युनिकेशन मोर एक्सेसिबल, अलाउिंग पीपल टू कनेक्ट विद ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ द जोग्राफिकल डिस्टेंस. आप कहीं पर भी रहो दुनिया में, आप किसी के साथ भी, कोई भी वर्ल्ड में, कोई भी कंट्री में किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो. तो इसका मतलब है जोग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है, राइट? न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है? इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, व्हाट्सएप, और कई तरीके के डिफरेंट मैसेजिंग एप्स हो गए which have transformed the way we interact with each other. You can video call anybody at any time, right? You can call anybody at any time. You can drop a message, ठीक है? आप ग्रुप चैट्स, ग्रुप वीडियो कॉल्स कर सकते हो. तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट? और इसके challenges क्या है? While technology has brought many benefit, it has also introduced challenges such as potential for misinformation, privacy and the decline to face. आजकल लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, वीडियो कॉल करना चाहते हैं एक दूसरे से, राइट? सो फेस टू फेस इंटरेक्शन कम होते जा रहा है. उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन जो है वो गलत भी स्प्रेड हो सकती है. कई बार सोशल मीडिया पे मैसेजेस देखना या चैटिंग करना या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस पे बात करना, कई तरीके के प्रॉब्लम्स, कई तरीके की बैरियर्स आ सकती है. उस बैरियर की वजह से क्या होगा? मिस इन्फॉर्मेशन शेयर होगी. कई बार प्राइवेसी कंसर्न्स भी होते हैं, कौन हमें सुन रहा है, कौन हमारे इमेजेस देख रहा है, वी नेवर नो. तो ये सारे प्राइवेसी कंसर्न्स और मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है. सो ये एक बड़ा चैलेंज भी है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए. टेक्नोलॉजी हैज ग्रेट एस्पेक्ट्स, ग्रेट एडवांटेजेस, बट एट द सेम टाइम इट हैज सम चैलेंजेस एंड कंसिडरेशंस. नेक्स्ट स्लाइड, मास्टरिंग बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बनाए? हमारा सब्जेक्ट ही बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है? सो बिजनेस कम्युनिकेशन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन. फ्रॉम क्लियर मैसेजेस टू एक्टिव लिसनिंग, the art of communication can make or break professional relations and drive organizations success. द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी आ सकती है. कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहा तो क्या क्या चीजें हो सकती है? क्लैरिटी आ सकती है, कनेक्शंस बिल्ड हो सकते हैं, कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है. ओके, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आएगी. फर्स्ट तो क्या है? क्लैरिटी, कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड इंस्ट्रक्शंस प्रिसाइजली टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड अलाइनमेंट. अलाइनमेंट होनी चाहिए कम्युनिकेशन में. चार लोग एक दूसरे से बात करें तो चारों को पता होना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है. एक आउट ऑफ द वर्ल्ड है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है मैसेज में, राइट? तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रॉपर जाने चाहिए. कम्युनिकेशन में अगर कम्युनिकेशन बराबर नहीं किया जाएगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी मैसेज में, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा. सेकेंड इज कनेक्शन. कम्युनिकेशन बेहतर है, अगर एक टीम में एक दूसरे से कम्युनिकेशन बेहतर है तो क्या होगा? कनेक्शन बिल्ड होगा,
ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जिसके साथ हम ट्रस्ट करते हैं, जिसके साथ हमें अच्छा लगता है, उसी के साथ हम काम कर सकते हैं, राइट। अगर आपको बोला जाए कि आपको ऐसे इंसान के साथ काम करना है जो जिससे शायद आपकी बनती नहीं है, तो शायद डिफिकल्ट हो जाएगा आपको उनके साथ काम करना, राइट। तो कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहा तो कनेक्शन बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, और इससे क्या होगा, रैपो भी बिल्ड होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, राइट। देन देयर इज कोलैबोरेशन, फैसिलिटेटिंग द टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोलैबोरेट करने की वजह से टीम वर्क अगर अच्छा हो तो कोई भी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो सकती है, किससे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, राइट। देन देयर इज कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन बेहतर रहा, टीम में बॉन्डिंग अच्छा रहा, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कन्विक्शन भी बढ़ेगा और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इस टीम के साथ बातें शेयर कर सकते हैं, उनके साथ हमारा मैसेज जो है वो क्लियर है, उनके साथ हम कनेक्शंस बना सकते हैं, इसकी वजह से काम करने में भी मजा आएगा और हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या क्या एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट इज वर्बल, सेकेंड रिटन, थर्ड इज नॉन वर्बल। अब ये तीन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो इनको, ठीक है, एलिमेंट्स बोल सकते हो। इसमें क्या क्या आता है? वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब बातचीत करना, स्पोकन लैंग्वेज, जहां पर बात आती है, टॉकिंग आता है, स्पोकन लैंग्वेज, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। टोन, कई बार टोन भी बहुत मैटर करता है, राइट। अगर आप गुस्से में तो आप ऊंची आवाज में बात करोगे, आप अगर खुश हो तो आप हंसते हुए बात करोगे, तो डिफरेंस समझ में आता है, टोन से समझ में आता है कि सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले का मूड क्या है। देन देयर इज रिटन, रिटन कम्युनिकेशन में क्या कहेगा? ईमेल्स, रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। देन देयर इज नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में जहां पे स्पीकिंग जरूरी नहीं है, बातचीत नहीं होती है, फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है? फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स और एक्टिव लिसनिंग से। एक्टिव लिसनिंग से भी शक्ल से पता चल जाएगा कि आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, राइट। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट स्लाइड। देन देयर इज बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव, अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहा तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। इंप्रूव्ड रिलेशन, अभी हमने पढ़ा कि अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहा तो बिजनेस में क्या होगा? रिलेशंस बेहतर बनते जाएंगे। क्लियर कम्युनिकेशन फॉस्टर्स ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि रिलेशन बिल्ड करना कंपनी में क्यों जरूरी है, एम्प्लॉयज के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में रिलेशन बेहतर होना क्यों जरूरी है? ताकि काम अच्छे से हो पाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड टास्क कोऑर्डिनेशन दैट कैन हेल्प द वर्क प्लेस एफिशिएंटली। काम बेहतर होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बोला कि अगर आपको ऐसे कलीग के साथ काम करने दिया जाए जिससे शायद आपका बनता नहीं है, या फिर झगड़ा हो गया है, या मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो गई है, और ऐसे टाइम पे अगर आपको काम उनके साथ करने दिया जाए तो शायद प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। तो ये प्रोडक्टिविटी कम क्यों ना होनी चाहिए? जिससे कि कम्युनिकेशन बेहतर हो, तो उनके साथ कम्युनिकेट करके, बातचीत करके रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। देन देयर इज रेड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। अगर कम्युनिकेशन बेहतर रहा तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट जो है, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़े, वो कम हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ओपन डायलॉग होगा एंड एक्टिव लिसनिंग दैट प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप अच्छे से सुनोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो वो वापस पूछना जरूरी है। अगर सेंडर ने एक मैसेज रिसीवर को भेजा है तो रिसीवर ने फीडबैक देना जरूरी है, अभी हमने उसको पढ़ा। अगर रिसीवर को मैसेज समझ में आया तो उसने सेंडर को बोलना चाहिए कि समझ में आया। अगर मैसेज नहीं क्लियर हुआ है तो रिसीवर ने वापस रिप्लाई करना चाहिए कि नहीं समझ में आया है, प्लीज रिपीट। इससे क्या होगा? सेंडर को समझ में आएगा कि यस, इसको समझ नहीं आया, मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, राइट। एंड इससे क्या होगा? ब्रांड या कंपनी का रेप्यूटेशन बढ़ेगा। रेप्यूटेशन बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन अगर बेहतर रहा तो ऑलवेज रिमेंबर द बिजनेस, द ब्रांड रेप्यूटेशन विल ऑलवेज बी हायर, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, कॉम्पिटेंसीज बढ़ेगी, इंप्लॉयज को भी काम करने के लिए अच्छा लगेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी मजा आएगा काम करवाने के लिए। तो ये सारी चीजें समझ में आएगी जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, ठीक है। 7 C's है यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन के, हालांकि सिलेबस में आपके नहीं है, बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आप सुन सकते हो। क्लैरिटी, कॉन्सियसनेस, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस, ये 7 चीजें होनी चाहिए। कर्टिसी, कॉन्क्रीटनेस एंड करेक्टनेस, ये 7 चीजें अगर आपकी कम्युनिकेशन में हो जाए तो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा? इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट स्लाइड, मास्टरिंग द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे आप कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हो? तो एक्टिव लिसनिंग, अच्छे से सुनना, सेंडर क्या बोलना चाहता है,
ठीक है, वो अच्छे से सुनना, एम्पैथी, उसके सामने वाले के नीड्स को समझना, सामने वाले के आइडियोलॉजी को समझना, ठीक है, पर्सपेक्टिव, किस बात पे बात हो रही है, किस पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है, ठीक है, गलत ना समझना, इसे कहते हैं एम्पैथी। एंड मैसेजिंग, कॉन्सियस मैसेजिंग, कन्वे आइडियाज क्लियरली एंड आइडियोलॉजी को समझना, ठीक है, पर्सपेक्टिव, किस बात पे बात हो रही है, किस पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है, ठीक है, गलत ना समझना, इसे कहते हैं एम्पैथी। एंड मैसेजिंग, कॉन्सियस मैसेजिंग, कन्वे आइडियाज क्लियरली एंड नेक्स्ट स्लाइड, द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अभी ये हमारा मेन स्लाइड है कि कम्युनिकेशन किस प्रोसेस में जाता है, किस वे में कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। देन देयर इज अ सेंडर, देयर इज अ चैनल एंड देयर इज अ रिसीवर। हम सबको पता है कि एक सेंडर होता है मैसेज की साइकिल में, देयर इज अ रिसीवर एंड देयर इज अ चैनल। तो सेंडर कौन होता है भाई? जो मैसेज को एनकोड करता है, एनकोडिंग द मैसेज विद डिजायर्ड मीनिंग, मैसेज को बनाना, एनकोड करना। हम एनकोड ये वर्ड कब यूज करते हैं? जब भी सेंडर मैसेज ऐसे बनाए जो रिसीवर को समझ में आए, राइट। अगर मैं क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ जो टीवाई के बच्चे हैं, तो टीवाई के बच्चे हैं तो मैं उनको एफवाई एसवाई के बच्चों की तरह तो नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफ देर आर स्टूडेंट्स who cannot listen, they have some hearing disability in my class, if there are students who have hearing disability, तो मैं उनको एक्शन से समझाऊंगी, ठीक है, बोर्ड पे लिख के समझाऊंगी, प्रेजेंटेशन से समझाऊंगी या स्पीकिंग करके समझाऊंगी। ऑब्वियसली मैं उनको बात ना करके एक्शन से समझाऊंगी, बोर्ड पे कॉन्सेप्ट्स लिख के समझाऊंगी, प्रेजेंटेशन विजुअल कम्युनिकेशन से समझाऊंगी। तो सेंडर ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि रिसीवर कैसे समझेगा मैसेज को, और उस हिसाब से वो मैसेज को क्या करना चाहिए, एनकोड करना चाहिए, ठीक है। देन देयर इज चैनल, द मीडियम यूज्ड टू कन्वे द मैसेज। किस वे में, किस चैनल से मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, किस वे से, किस मेथड से मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, और वो चैनल रिसीवर को एक्सेसिबल है या नहीं। जो रिसीवर है, क्या उसके पास वो चैनल अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, तो ही उस चैनल से मैसेज कम्युनिकेट होगा, राइट। अगर एक इलिटरेट, अगर सामने वाला मेरा जो, जिसको मुझे मैसेज पास करना है, ही इज इलिटरेट, ही कैन नॉट रीड और राइट, ओके, तो ऐसे टाइम पे अगर मैं उसको एक लेटर लिखूं तो वो चैनल मेरा गलत हो गया, बिकॉज उसको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो मेरा रिसीवर को मैसेज समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कौन सा चैनल, राइट चैनल चूज करना मैसेज के लिए भी बहुत जरूरी है। Then there is receiver. Receiver decodes and interprets the received message. अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रिसीवर क्या करता है, सेंडर के मैसेज को समझता है, डिकोड करता है। क्या कहते हैं उसे? डिकोडिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे बेसिक कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स है, मतलब कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। प्रेजेंटेशंस, ऑडियंस को प्रेजेंटेशंस दिखा के कम्युनिकेट करना, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करना, मीटिंग्स जहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा हो, और रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये सब चीजों से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। हमें पहले तो ये चार्ट देखना है, बट हम पहले ये समझेंगे कि वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर हम लोग इस चार्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। चल, वन वे कम्युनिकेशन वर्सेस टू वे कम्युनिकेशन। तो बेसिक बहुत मेथड यूज किया गया है कि अगर आपका कम्युनिकेशन आपको इफेक्टिव करना है तो उसे टू वे कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। तो पहले वन वे समझ लेते हैं, वन वे, एंड देन वील अंडरस्टैंड व्हाट इज टू वे। सो वन वे कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। देखो, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। कौन है ये? सेंडर और ये रिसीवर। तो सेंडर ने मैसेज रिसीवर को भेजा, बस, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज वन वे कम्युनिकेशन। तो ये रिसीवर हो गया, ये सेंडर हो गया। सेंडर ने मैसेज भेजा, क्या मैसेज है? देखो, टेक दिस गुड्स टू द कस्टमर, ये प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास लेके जाओ, तो ये उसने कमांड दिया, तो ये क्या हो गया? वन वे कम्युनिकेशन। मैसेज इज सेंट फ्रॉम सेंडर, दिस इज द सेंडर, टू द रिसीवर, टू द रिसीवर। रिसीवर हैज नो चांस टू प्रोवाइड एनी फीडबैक। यहाँ पे वो क्या बोलेगी? ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती है। उसके बॉस ने उसको बोला है कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाओ, तो वो पहुंचाने वाली है। इसमें यहाँ पे स्कोप नहीं है ज्यादा फीडबैक का, तो इसे क्या कहेंगे हम? वन वे कम्युनिकेशन। सिमिलरली, अगर टू वे कम्युनिकेशन है तो क्या होगा? यहाँ पर जो रिसीवर खड़ा है वो रिप्लाई करेगा, किसको? सेंडर को, तब उसे क्या कहेंगे? टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन, वन वे में क्या होता है? सिंगल डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन फ्लोज बाय डायरेक्शनल, वापस रिप्लाई कर रहे हैं, रिसीवर जो है वो वापस फीडबैक दे रहा है, तो तब जो क्या हो गया? वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया।
फिर वन वे में क्या होता है, पैसिव, नो अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक। यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता फीडबैक को, या ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती फीडबैक में। टू वे में क्या होता है, इंटरैक्टिव एंड अलाउज फीडबैक। तो टू वे कम्युनिकेशन में ये अपना फीडबैक भी बॉस को दे सकती है, ठीक है, उसकी कुछ सजेशंस है या कुछ प्रॉब्लम्स है, जो भी है वो रिसीवर सेंडर को दे सकता है, ठीक है। अब वन वे का एग्जाम्पल क्या है, प्रेजेंटेशन एंड अनाउंसमेंट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, लेक्चर बना रही हूँ, तो ये क्या है, ये वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं आपको प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको पढ़ा रही हूँ, तो दिस इज वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पे क्लास में बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, राइट, इंटरव्यूज ले रहे हैं, तो दैट इज अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। okay, then there is importance of effective business communication. Business communication important क्यों है, effective क्यों होना चाहिए, इससे हेल्प होता है डिसीजन मेकिंग में, informed decision making, clear communication ensures everyone has the necessary information. नेसेसरी इंफॉर्मेशन सबके पास होती है और डिसीजन मेकिंग के लिए आसानी हो जाती है। then there is streamlined operations, effective coordination and collaboration optimizes वर्कफ्लो। अगर कम्युनिकेशन अच्छे से रहा तो काम भी अच्छे से होगा, वर्कफ्लो भी, काम सबको पता होगा उनको क्या करना है, कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा। then there is competitive advantage, strong communication skill sets business apart from competitors। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो लोग आपको हमेशा आपके बिहेवियर से, आपके कम्युनिकेशन से आपके ब्रांड को याद रखेंगे, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, मार्केट में कंपटीशन भी अच्छा रहेगा, ठीक है, आप कंपटीशन में आगे रहोगे। देन देयर इज इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। अगर कस्टमर को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन से वो सॉल्व होगा। तो कस्टमर केयर्स होते हैं, पता है आपको, ब्रांड्स में, कंपनीज में कस्टमर केयर सर्विस होते हैं। आपको कोई इशू आया प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो, राइट। तो कस्टमर सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी कम्युनिकेशन की वजह से, ओके, राइट। सो जस्ट दिस इज वन स्लाइड दैट आई हैव पुट की कोट्स क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन के रिलेटेड। सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज दैट इल्यूजन दैट इज टेकन प्लेस। हमें लगता है कि हमने कम्युनिकेट किया है, बट जब तक रिसीवर को वो मैसेज ना समझ में आए तब तक वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, दिस कोट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ensuring म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दो या दो से ज्यादा लोगों में होती है, एक इंसान में कभी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग लगते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रॉब्लम क्या है कंपनीज का, बड़े बड़े कंपनीज का बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने कम्युनिकेट किया है, बट रिसीवर को वो समझ में नहीं आया है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो मैसेज हम दे रहे हैं वो रिसीवर को समझ में आए, ठीक है। और एक कोट है यहाँ पर, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट व्हाट दे हियर। वो क्या सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो वो जरूरी नहीं है, वो क्या सुनना चाहते हैं वो आपको बोलना जरूरी है, ठीक है। आई ऑलवेज टेल इन द क्लास, व्हाट इज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वेदर द बिजनेस, क्या बिजनेस को कम्युनिकेट क्या करना है कस्टमर को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कम्युनिकेट इस तरह से करो, जो वो बोलो जो सामने वाले को सुनना है, जो वही बोलो जो रिसीवर को सुनना है। जब आप वही बोलोगे जो रिसीवर को सुनना है, तो रिसीवर आपकी बात समझ में आएगा, उसको ट्रस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्लास में एक स्टूडेंट की तारीफ कर दी, ठीक है, एक बार की, दो बार की, तारीफ तो सबको पसंद है, राइट। तो मैंने उसकी एक दो बार तारीफ कर ली। अब तारीफ करने मैं उसको कुछ भी काम बोलूं या मैं उसको कुछ भी अच्छे से पढ़ाऊं या सिखाऊं या कुछ भी बोलूं, तो हमेशा मेरी बात मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने उनकी तारीफ की है, आई ट्रस्ट दैट पर्सन, राइट। तो रिसीवर ने सेंडर पे ट्रस्ट करना जरूरी है, और वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सेंडर ने कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना जरूरी है, ओके। आई होप आई एम very very clear on this, okay। I think we should stop here, and the next, the fundamentals of business communication, उसके बाद oral written communication है, फिर कुछ channels है communication के, वो हम लोग अगले session में जरूर पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। I don't want to make the videos long and boring for you, so let us cover the short topics। I know मैंने start में बोला था कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, but I think it would create kind of confusion, क्योंकि आगे के topics थोड़ा सा, फिर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो ये थोड़ा सा एक अलग इसके ऊपर वीडियो बनना जरूरी है, इन डिटेल वाला, right। So I hope you've understood the lecture, the video। If you have any doubts, as usual, please drop them in the comment section। of course, receiver ने अगर
बताया नहीं सेंडर को कि उसको मैसेज नहीं समझ में आया है, तो सेंडर को कभी नहीं पता चलेगा. इन दिस केस आई एम द सेंडर, my viewers, my students who are watching this video are the receivers. So receivers should give feedbacks. Yes, so feedback in comment section is more than welcome. कोई doubts है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है. And please share this video to the maximum to your fellow students जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें जरूर शेयर करिए. It will help them in their subject. Okay, thank you so much dear students for listening patiently. See you in the next video. Thank you.